Hello everyone, welcome back to our own channel Dr. Purva Sahu. Today students, we are doing contraceptive methods, in which today we will study about the barrier methods and the intrauterine devices, also ill effect of the contraceptive methods. So we are doing contraceptive methods, in which today we will study about the barrier methods and also intrauterine devices. So first of all, we will understand what is the principle of the barrier methods. So barrier methods, how do they work? They basically prevent the physical meeting of sperm and ovum. स्टूडेंट, हम लोगों को ये पता है कि जब तक स्पर्म एंड ओवम आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जब तक इन दोनों का फ्यूज़न नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, एंड नो जाइगोट फॉर्मेशन, देयर इज़ नो प्रेगनेंसी. So they prevent the physical meeting of sperm and ovum. Condoms are available for both male as well as female. So how do these condoms work? So before the coitus, this condom is used by male partner to cover his penis, or by female partner to cover cervix and vagina. So that is used before the coitus. So what will happen whenever there is a ejaculation, so that ejaculated semen would be collected into the condom. And the advantage of it's what? That this semen will not enter inside the female genital tract. So we can understand how do they work. So basically this used to cover the penis by the male, and also it can be also used by the female to cover the cervix and the vagina just before the coitus. So that ejaculated semen would be collected into the condom, and that semen will not enter inside the female genital tract. If I draw the diagram of the female genital tract, that's like this. So that if it is covered by the condom in female, then that ejaculated semen will remain here, okay, and that it would be removed because these condoms are disposable. These are disposable, so they would be disposed after the use. So they are disposable. तो जब इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा तो जितना भी सीमेन है वो बाहर ही एजैकुलेट होगा, ना कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. So this semen will not reach to this part. Okay, hope you understood the use of this condom. Now the second benefit of this condom is they also use to protect the user from contracting STDs and AIDS. So I will write here, they are also used to protect the user from contracting STDs, it means sexually transmitted diseases, and also very dangerous disease, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, which is caused by the virus HIV. Okay. Next we will understand the barrier methods which are used by female only. So by female, the barrier methods which are used like cervical caps,
vaults and diaphragm. They can be used by the female to cover the basically what? To cover the cervix and vagina, so that the semen will not enter into the female genital tract. If we talk about that these are made up of what, then condom is made up of rubber or latex sheet, and similarly these cervical caps, vaults, diaphragm, they are also made up of thin rubber. So advantage of this, semen will not enter into the female genital tract. These are reusable, they can be reused again. So these are reusable. Now beside of this condom, cervical cap, diaphragm, other things are also used with these barrier, like spermicidal creams, jellies, foams. They are also used with these barrier to increase the contraceptive efficiency. So they are also used with these barrier to increase contraceptive efficiency. Hope you got it. So these are basically barrier method. तो बैरियर मेथड हैज़ टू एडवांटेज. पहला तो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, और दूसरा ये प्रोटेक्ट करते हैं यूज़र को फ्रॉम दी एसटीडीज एंड द एड्स ऑल्सो. दे कैन बी यूज्ड बाय बोथ फीमेल एज वेल एज मेल. और मेनली जो फंक्शन है इनका वो ये है कि जो सीमेन है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ना पहुँचे, ताकि अगर वो बाहर ही रह जाता है यानी सर्विक्स से बाहर ही रह जाता है और जो भी हम लोग बैरियर यूज़ कर रहे हैं उसी में ही रह जाता है, तो फर्दर उसका ट्रांसपोर्टेशन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं होगा, एंड देन देयर विल बी नो फ्यूजन बिटवीन द स्पर्म्स एंड ओवम. ये बेसिक प्रिंसिपल होता है बैरियर मेथड का. कॉन्डोम्स कैन बी यूज्ड बाय मेल एज वेल एज फीमेल. सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायफ्राम, दे आर यूज्ड बाय द फीमेल. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. नेक्स्ट है हमारे पास में इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. नाम से ही चलते हैं बच्चों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनको कि यूट्रस में लगाया जाता है. इंट्रा का मतलब होता है बच्चों हमेशा जहाँ कहीं भी वर्ड आता है इंट्रा, उसका मतलब हमेशा विद इन होता है, और इंटर का मतलब होता है दो के बीच में. जैसे इंटर कास्ट, दो कास्ट के बीच में. इंटर स्कूल, इंटर स्कूल क्या हो गया, दो स्कूल्स के बीच में कोई कंपटीशन हो तो. इंट्रा स्कूल, इंट्रा स्कूल के मतलब हो गया एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में. तो यहाँ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब हो गया कि ऐसी डिवाइस जिसको कि यूट्रस में लगाया जा रहा है. तो यूट्रस में जब डिवाइस लगाई जाती है तो बेसिकली उसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स या फिर नर्सेस का होना चाहिए. सो दीज आर इंसर्टेड इनटू यूट्रस बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स और क्वालिफाइड नर्सेस. ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पे होती है वो बहुत ज़रूरी है जानना. इंसर्ट होती है यूट्रस में, और यूट्रस में स्टूडेंट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन. सो दीज डिवाइसेस बेसिकली स्टॉप द इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कितने टाइप्स की ये होती है. सो दीज आर अवेलेबल इन 3 टाइप्स. कौन कौन सी हैं देखते हैं. द फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. सेकंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. और थर्ड मैं आपको बता रही हूँ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज.
ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग एंड नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है आप लोगों को स्टूडेंट, एग्जाम्पल है लिपीज लूप, क्वेश्चन आता है इसमें एमसीक्यू फॉर्म में भी। कॉपर रिलीजिंग कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इससे रिलेटेड बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे नीट लेवल हो। एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती हैं। तो दे विल प्रमोट व्हाट, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमारी बॉडी में एक तरह से मैं बोलूँ कि एक रिएक्शन होती है किसी भी फॉरेन सेल को देखकर। फॉरेन सेल को जो न्यूट्रोफिल्स होती है, हमारी जो WBCs होती है, वो कहीं ना कहीं फॉरेन सेल को किल कर देती है, उसको एनगल्फ कर लेती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है। उस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो दैट विल प्रमोट द फैगोसाइटोसिस व्हाट, फीमेल की बॉडी में जो फॉरेन सेल है वो तो स्पर्म है, तो दैट विल प्रमोट द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। उसके अलावा जो कॉपर होता है स्टूडेंट, दैट कॉपर विल सप्रेस the motility of sperm, the motility of sperm। और स्पर्म की अगर मोटिलिटी कम हो जाएगी, यानी उनकी जो मूवमेंट होनी चाहिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, अगर वो उतनी नहीं हो पाती है, तो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म विल डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करती हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज प्रमोट द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एंड ऑल्सो सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है स्टूडेंट, उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। अगर वहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाते हैं तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कॉपर टी वगैरह जो होती है, इसकी जो शेप होती है वो टी शेप होती है, इसलिए इसको कॉपर टी कहते हैं। ये इस तरह से होती है, इसके यहाँ नीचे से थ्रेड निकले हुए रहते हैं, तो दैट इज़ इंसर्टेड लाइक इन दिस वे, सो इट विल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पिक्चर भी दे रखा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ के बारे में। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ क्या एडिशनल वर्क करती हैं? तो ये एडिशनल जो वर्क करती है बेसिकली हमारे 2 ऑर्गन्स पे करती है। पहला करती है यूट्रस पे और दूसरा करती है सर्विक्स पे। तो यूट्रस पे बच्चों क्या करती है, इट विल मेक यूट्रस अनसूटेबल, इट विल मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर दी इम्प्लांटेशन, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम हो वो काफ़ी ज़्यादा थिक होनी चाहिए। पर जब थिक नहीं होगी, अगर जैसे ये मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है, और ये यूट्रस की अगर नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो इतनी थिक हो जाती है एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन से पहले, तो दैट विल हेल्प इन इम्प्लांटेशन। बट अगर ये बहुत पतली है, थिन है, तो दैट विल प्रिवेंट दी इम्प्लांटेशन, तब उस केस में इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो दीज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज समवेयर मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर दी इम्प्लांटेशन। सेकेंड ये काम करती है सर्विक्स पे, तो दे विल मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में होता है, यानी थिन फॉर्म में होता है। दैट विल प्रोवाइड द लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि इजीली स्पर्म यहाँ से मूव होते हुए पहुँच सके फैलोपियन ट्यूब तक, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा। बट अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो देन इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म। सो हॉस्टाइल टू स्पर्म, हाउ द सर्वाइकल mucus will become thick and that will prevent the entry or retard the entry of sperm in female genital tract. Hope you got it.
This will prevent the entry or retard the entry of sperm into female genital tract. तो ये हो गया हमारा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में, आईयूडीज़ के बारे में, नॉन मेडिकेटेड हो गई लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग हो गई कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग हो गई आईयूडीज़। इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ के एग्जांपल स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये एग्जांपल है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। LNG की फुल फॉर्म मैंने अपने लास्ट वीडियो में दी है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि LNG की फुल फॉर्म क्या है। तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 आपके दो एग्जांपल्स हो गए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ के। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ के एग्जांपल हो गए लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग के हो गए कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ के एग्जांपल्स हो गए प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं वो हमेशा अंडर द गाइडेंस ऑफ द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के ही लेना चाहिए। दे शुड बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, बिकॉज इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर किसी का बॉडी सिस्टम जो होता है स्टूडेंट वो अलग अलग होता है, तो हर किसी के लिए एक जैसा ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एडवाइस नहीं किया जा सकता। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं स्टूडेंट, हम लोग वो स्टडी कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। डेज़ वगैरह जो हम लोग नॉर्मल डेज़ मान के चलते हैं 1 to 5th डे, वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाता है। दैट विल कॉज अ डिस्कम्फर्ट टू द फीमेल एंड ऑल्सो ब्रेस्ट कैंसर। द ब्रेस्ट कैंसर कैन ऑल्सो बी देयर। सो दीज आर दी side effects of using the contraceptive methods: nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, abnormal vaginal bleeding and the breast cancer. Copper tea, most I can say like a popular device है that is used by the female, and this is used for like to delay the pregnancy or for space between चिल्ड्रन। कई महिलाएं हैं जो इसका यूज़ करती है ताकि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो थोड़ा सा लेट हो जाए, और या फिर दो बच्चों के बीच में अगर थोड़ा सा टाइम उसको चाहिए होता है तो कॉपर टी जो होती है वो एक टेम्परेरी मेथड के थ्रू यूज़ की जाती है। इट इज़ नॉट अ लाइक परमानेंट मेथड। जब भी वो चाहती है प्रेग्नेंट होना तो ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को रिमूव करवा सकती है फ्रॉम द यूट्रस एंड देन शी कैन गेट प्रेग्नेंट। ओके, so hope you like this video. If you like this video then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel Dr. Purva Sahu. Thank you so much.